Hi everyone, welcome back to my channel Ananta L, and I hope you guys are doing great and fine. And it's been a while, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली, but yes, I was uploading my YouTube shorts here about all my life, traveling and coming to Germany. So I thought of making this video, and thumbnail आपने देखी होंगी, my journey from India to Germany as a master student. तो मास्टर स्टूडेंट के लिए एक लाइफ बहुत अलग होता है एंड आई वुड प्रेफर इफ़ यू हैव completed your bachelor's degree then you must try coming to Germany for master's degree. It's good, it has wide varieties and it's affordable. So if you're new to this channel, hi, my name is Anantha Lakshmi MK and basically I'm from Kerala but was brought up here in Chandigarh, and right now I'm here in Germany and doing my Masters of Arts in Human Geoscience and Earth Studies from University of Mainz in Germany. So don't forget to like this video and subscribe to my channel. Also follow me on Instagram. Let's get started. Okay, so my journey, I was मेरा एक अलग एक्साइटमेंट लेवल था when I was in second year. So I was doing my bachelor's in geography at that time. Second year ख़त्म होने वाला था. Then I thought of planning to move in Germany, to getting a master's degree. So I was like, पहले ही सब देख के रखती हूँ. So the first main step is to do research of your universities in the field and the course which you want to do in that particular university. यूनिवर्सिटीज़ आपको ढूंढना पड़ता है. मैंने इतने बार यूनिवर्सिटीज़ ढूंढे. मुझे जैसे मैंने DAT वेबसाइट पे, DAT वेबसाइट इज़ यूज्ड फॉर द checking of your courses, your universities. The link I will give in the description. You can check through that link and you can see the universities and the courses which they offer. So I was like कि मुझे कोर्सेस मिल रहे थे, तो मैंने एक एक यूनिवर्सिटी का चेक करा, नोट करा मैंने हर एक यूनिवर्सिटी जो मुझे चाहिए था, क्योंकि सबके मैंने रिक्वायरमेंट्स देखे, कोर्स देखे, फीस देखे. तो आई नोटेड फर्स्ट 5 यूनिवर्सिटीज़. आई अप्लाइड नेम. पहले मैंने किसी और कंसल्टेंट से करवाया था. तो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सब कुछ पता करने के बाद ही मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करी. एंड आई गॉट into 3 universities, but I like this university, that is University of Mainz, which is this university is very famous for the students and other programs and the courses they offer, and the university is so good from inside. It's a all historical and that's so ये बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है. एंड तो पहले मैंने जो चीज़ करी है वो रिसर्च. आपको अपना यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज़ के बारे में रिसर्च करना है. Then the second thing is you need to get to know what all is required for a master degrees eligibility in Germany. Eligibility के लिए आपको चाहिए आपकी bachelor's degree. Bachelor's degree should be like your आपके bachelor का degree हो proper. Then you should have the transcripts जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेवन्थ ये सारे आपको चाहिए. फिर एजुकेशनल आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, दैट इज़ योर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेट्स. फिर आपके जो भी अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है, कोई डिप्लोमा है या कोई और कोर्स किया है, उसके सर्टिफिकेट्स भी आपको लगाने चाहिए. फिर आपके पास होनी चाहिए एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब आइल्स, टॉफल, पेट और अदर. देन यू शुड हैव अ जर्मन लैंग्वेज ऑल्सो. वो आप जर्मन लैंग्वेज भी यहाँ दिखा सकते हो. वो आप तक करके फिर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर APS. APS इज़ काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट जिसमें आपके सारे क्वालिफिकेशंस उसमें एक सर्टिफिकेट में मेंशन होगा इन जर्मन लैंग्वेज. सो दैट इज़ अ सिंगल सर्टिफिकेट विच कम्स थ्रू मेल. मतलब जब एक बार आप अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद आपका APS भी आ जाता है. फिर APS ही लगता है आपके आगे प्रोसेस में. ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स मीन्स योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, योर अचीवमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क जो भी आपने करा है वो सब आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. फिर आपकी कंट्री प्रूफ चाहिए, लाइक योर ID कार्ड, योर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब, पैन कार्ड, ये सब आपकी प्रूफ्स हैं हुआ है. एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स
and certificates. Then statement of purpose. Statement of purpose is your SOP. क्यों आना है यूनिवर्सिटी में, क्यों ये कोर्स आपको चाहिए, या आपको एक SOP प्रॉपर स्ट्रॉन्ग SOP बना चाहिए, ना इधर उधर से उठा के नहीं. आपको एक खुद अपना एक थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, बट अपना खुद का माइंड लगा के एक SOP आपने बनाना है. एंड देन यू नीड LOR. LOR इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मैंने LOR तब लिया, मैंने LOR जब मेरा 3rd ईयर चल रहा था, मैंने स्टार्ट कर दिया था LOR वगैरह बनाना. टीचरों से साइन तब करवाया जब 3rd ईयर ख़त्म हुआ, एंड तब मैंने साइन वगैरह करवाया, फिर LOR लिया. बट LOR मेरा लगा नहीं, कहीं कहीं एप्लीकेशन में तो नहीं लगा, बट LOR इज़ रिक्वायर्ड एट द एंड जब आप अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटीज़ में. मैंने तो LOR भेजा है, तो पर पता नहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने नहीं मांगा, तो इट्स गुड, बट LOR इज़ मैंडेटरी ना. देन यू रिक्वायर्ड CV. CV इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन, आपका सब कुछ, वर्क, प्रोजेक्ट सब मेंशन हो उसमें. देन यू शुड हैव अ प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि आपका एक ब्लॉक अकाउंट शो होगा उसमें, ठीक है, तो उसमें मेंशन होगा ब्लॉक्ड अकाउंट. प्रूफ आप क्या दोगे, ब्लॉक्ड अकाउंट. एंड देन योर पासपोर्ट एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़. एक बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ ज़रूर निकलवाना, क्योंकि बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ इज़ यूज्ड इन वीज़ा, तो उस टाइम कोई झंझट ना हो, तो आप पहले से ही बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ निकाल लो. देन अब जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके हाथ में, देन गो एंड अप्लाई टू द यूनिवर्सिटीज़. चाहे आप यूनी असिस्टेंट के थ्रू करो या फिर आप कंसल्टेंट के थ्रू करो. एंड नोट दिस, जो आपने यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करे थे उसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो. फर्स्ट प्रेफरेंस रखो कोई जो आपको लगता है कि हाँ उसमें ही आ जाए, तो उसमें ही आ सकता है, ही मिलता है. So it's better to keep a list of the universities which you selected, which you want to get offer in this university. वो हो गया. अप्लाई करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ता है, विच इज़ अराउंड 75 यूरोज़ फॉर फर्स्ट यूनिवर्सिटी. फिर आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ का आपका 30 यूरोज़ पर यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं. जब आप फीस सबमिट कर दोगे उसके बाद यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन. अब आपका जो एप्लीकेशन है, एक समर इनटेक होता है, एक विंटर इनटेक होता है, तो आपको डबल चेक करना है कि आपका कौन सा इनटेक है. इनटेक के अकॉर्डिंग आपको डेट्स चेक करने होंगे. फॉर एग्जांपल, आपने अगर समर इनटेक में आना है, तो समर इनटेक का जो टाइम पीरियड होता है, एप्लीकेशन टाइम पीरियड, दैट इज नवंबर टू जैन. एंड फॉर विंटर इनटेक, इट्स फॉर विंटर इनटेक इट इज़ मई टू जून, जुलाई ऐसे. तो आपको लाइक विद इन 2 months आपका ऑफर लेटर आ जाते हैं. सो यू शुड नो द टाइम पीरियड ऑफ दिस समर एंड विंटर इनटेक का. आपका आता है रिसीव. देन आपका आता है एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी से कि आपका ये यूनिवर्सिटी है. फॉर द ब्लॉक्ड अकाउंट यू हैव टू डिपॉजिट अराउंड 11,904 यूरोज़, जो अप्रॉक्स आपको लगाना होता है उसमें ब्लॉक्ड अकाउंट में. दैट ब्लॉक्ड अमाउंट इज़ यूज्ड for your external purposes, expenses once you reach Germany for the first year of your studies, क्योंकि आपको सेमेस्टर फीस पे करना पड़ता है, तो उसी में से आप यूज़ करोगे. बट आई वुड रिकमेंड यू टू हैव एक्स्ट्रा आप कुछ इंडियन मनी यूरोज में कन्वर्ट करके यहाँ से ले आओ इंडिया से, लाइक अराउंड 50,000 और 80,000 इन हैंड. उससे ज़्यादा आप लेके नहीं आ सकते, तो आप अपना इन हैंड इतने मनी रख सकते हो इन हैंड. एंड क्योंकि अगर आपका ब्लॉक्ड अमाउंट नहीं खुला, तो उसके लिए, उस पर्पसेस के लिए यू मस्ट हैव समथिंग इन योर हैंड. एंड या देन जब ब्लॉक्ड अमाउंट आपका हो जाएगा डिपॉजिट, यू विल गेट अ लेटर एंड द कंफर्मेशन लेटर, ऑल दैट. वो आपको वीज़ा के टाइम लगाना है, वो लेटर वगैरह. एंड जैसे ही आपका ब्लॉक्ड अमाउंट ठीक हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, लेटर वगैरह आ जाता है, देन गो फॉर applying for the visa appointment and just wait. कभी कभार ऐसा होता है कि वीज़ा अपॉइंटमेंट आपको एकदम से नहीं मिलता है, आपको स्लॉट्स टाइम लगता है. स्लॉट्स आपके मेल पे आ जाता है कि स्लॉट अवेलेबल है करके, तो आपको वेबसाइट ऑन लिंक क्लिक करके देन यू हैव टू सी द स्लॉट्स इफ़ इट इज़ अवेलेबल और नॉट. जो भी अर्लीस्ट स्लॉट मिलता है आपको, प्लीज़ ट्राई पिकिंग इट, क्योंकि कई बार फिर स्लॉट्स बंद हो जाते हैं, फिर आपको मिलना मुश्किल हो जाता है. तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहले स्लॉट्स मिला था, फिर नहीं मिला, फिर मिला, फिर ओपन नहीं हो रहा था. तो इनके साइट में भी कई बार दिक्कत होती है. तो इट्स बेटर इफ़ यू आर गेटिंग इट अर्लीस्ट, ट्राई
एंड गेट फॉर द वीज़ा एट अर्लीस्ट। अब उसमें जब आपका वीज़ा स्लॉट बुक हो जाता है तो वो दे आस्क फॉर देयर स्लॉट बुक हो जाता है, तो उस वीज़ा के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स मैंने बोल दी। तो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ याद से लेके जाना, एंड इट शुड बी ऑल कलर्ड प्रिंट आउट्स, बिकॉज उससे क्या होता है थोड़ी वेरिफिकेशन ईजिली हो जाता है, कुछ क्लैरिटी उनको मिलती है जब वो वेरीफाई करते हैं। तो दैट्स ऑल आई हैव मेंशन्ड हियर, and yeah, then you are ready once you get receive your visa, and it's all set. Then you have to book your flight and check flight. And this is the process. My process was completely different, like मैंने कंसल्टेंट के थ्रू करवाया, तो मुझे जितना पता था मैंने उतना आप लोगों को गाइड करा। बट नाउ द थिंग इज़, इफ़ आई टॉक अबाउट ऑल दैट कि कैसे क्या करना है, क्या लेके जाना है जर्मनी, क्या सामान चाहिए, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अनटिल एंड अनलेस, एंड मैं आपको एक रियलिटी चेक दूंगी कुछ जर्मन एरियाज़ के, जर्मनी के बारे में भी। यहाँ पे आपको मैंने इसमें अभी बता दिया कि जो फ्री एजुकेशन वाला सीन है, it's the same, and free education means that your semester contribution will be there, but no tuition fees. That's in public universities. प्राइवेट यूनिवर्सिटी का थोड़ा अलग है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में है फीस, ट्यूशन फीस है, सेमेस्टर फीस भी है उनका। सो या, एंड द बेनिफिट इज़ यू विल गेट सेमेस्टर टिकट में जो आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका ट्रैवल कंट्रीब्यूशन होता है, लाइक आपका बस एंड ट्रेन का टिकट, तो वो कवर हो जाता है उसी में एक्सपेंसेस। तो लाइक आपको है, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट यू गेट अ स्टूडेंट आईडी, एंड उसी में आपका बस टिकट एंड ट्रेन टिकट होता है। सो दैट इज़ यूजली अ डीबी। कुछ मैं आपको ऐप्स बताऊँगी, देन आई विल लेट यू नो, आई विल मेक अ वीडियो माई 1 month एक्सपीरियंस। सो या, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग वीडियो जस्ट टू लेट यू नो कि जो भी अभी जर्मनी आ रहे हैं वो प्लीज़ थोड़ा चीज़ों पे ध्यान दें, टाइमली वो लोग अप्लाई करें यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफर लेटर टाइमली आए, चेक करते रहे, मेल्स हमेशा चेक करें, चाहे वो आपका APS हो, चाहे आपका ऑफर लेटर हो, वीज़ा हो, सबके लिए। बट यू स्टार्ट डूइंग रिसर्च इन द third year of your bachelor's degree. That will be a great choice. Then you will get to know more about your universities, and you will have a lot of time. और जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन है सब आपने हर जगह डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखनी है, सभी अचीवमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स लें, सर्टिफिकेट्स लेके रखें। दैट्स माई गाइडेंस फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड या दैट्स माई जर्नी, आई एम लाइकिंग इट। एनीवेज, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग भी आएगा एक, एंड फिर एक वीडियो में डालूँगी अपने लाइफ में वाई 1 month एक्सपीरियंस here in Germany. So till then, stay tuned and don't forget to subscribe to my channel Ananta L.